Hello dear students, this is your teacher Sachin Khurana and today under human capital formation we will study the topic that is the state of human capital formation in India. Let us discuss it. India is a federal country with a union government, state government and local government. Local government में हम देखते हैं तीन चीजें that is the municipal corporations, municipalities and the village panchayats. The Constitution of India mentions the functions to be carried out by each level of government और उसके ही accordingly expenditures जो है वो education और health पे carry out होते हैं by the three tiers of the government. Next comes how does the government of India intervene in India and education and health sector? What are the efforts by the government of India in developing education and health sector? Let us identify the objectives and functions of NCERT, UGC, AICT and ICMR. राइट तो पहला आ गया इन एजुकेशन सेक्टर. इन एजुकेशन सेक्टर में क्या कहते हैं जो मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन है वेयर एट द यूनियन लेवल एंड द स्टेट लेवल या फिर जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन है एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई, these all facilitate institutions for development of education sector. In health sector क्या है हमारे पास मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ कहाँ पे यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसीएमआर ये जो है हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर की इंडिया में. लेट अस डिस्कस द एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डेवलपिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर. With a large section of population living below the poverty line, many of us cannot afford to access basic education and healthcare facilities. और एक substantial section of our people है which cannot afford to reach super specialty healthcare and higher education. तो हम बात करते हैं कि बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है दैट इज द राइट ऑफ द सिटीजंस. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन सर्विसेज को अवेल करने की कोशिश करती है खास करके उनके लिए वो सोशली ओप्रेस्ड क्लासेस. राइट गवर्नमेंट जो है दे आर स्टेपिंग अप द एक्सपेंडिचर्स इन बोथ द सेक्टर्स टू अचीव what cent% literacy and increase in the average educational attainment of Indians. Now let us understand the purpose, need or benefit of government intervention or private institutions in human capital formation. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो ही चीजों की that is education and health sector. तो क्या होगा education और health जो है that create both private and social benefits and this is the reasons कि हमें दोनों types of institutions की जरूरत है. Expenditures on education and health make a substantial long term impact. जैसे कि अगर एक स्टूडेंट को हमने स्कूल में डाल दिया तो क्या होगा हम उसको इजीली दूसरे इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसे एक सब्सटेंशियल डैमेज होगा. इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो हैं अगर उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड देयर कॉस्ट तो यहां पर रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डू नॉट क्रिएट अ मोनोपोली पावर. राइट now let us highlight the growth in government expenditure on education. But this is the data which you have to learn. I'm reminding you again and again that you'll have to follow the latest NCERT book so that you can get the updated figures. Right? ये सब डेटा आपको याद करना है. क्या क्या सजेशंस थे किन किन कमीशंस के कितना कितना परसेंट ग्रोथ दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम जीडीपी का कितना परसेंटेज एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लगाएं. राइट चाहे वो एजुकेशन कमीशन का था, चाहे तपस मजूमदार कमेटी का था, चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर था. और जो भी पैसा गवर्नमेंट ने इकट्ठा करना शुरू किया इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन सेस. हाईलाइट करते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया. बेटा ये सारा डेटा आपको याद करना है एंड फॉर द लेटेस्ट ईयर डाटा यू विल हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी बुक. ये हमारा अडल्ट लिटरेसी का रेट है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट है, यूथ लिटरेसी रेट है. You can pause the video and learn these data. You can pause the video and solve this assignment also. Now let us discuss the inadequacies and challenges in education. The very first is high literacy rate. Right?
ये सारा का सारा डेटा आपको याद करना है। जेंडर बाइसनेस, कि हमारा जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो कम था एज कंपेयर टू मेल। लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अब बात यह है कि आप एजुकेटेड तो हैं बट आर यू एम्प्लॉयबल और जॉब ओरिएंटेड, तो इसके ऊपर फोकस करना जरूरी था। लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हम क्या बात कर रहे थे कि जो हमारा क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत लो है। यूनिवर्सिटीज में या बोर्ड्स में जो पढ़ाया जा रहा है दे डू नॉट मीट द जॉब रिक्वायरमेंट्स, तो इसलिए हमें चाहिए था कि हम चेंज करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन बाय सीसीई। इनसफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर वही एक्सपेंडिचर के ऊपर बात आ गई कि हम 4% ऑफ जीडीपी कर रहे थे लेकिन होना चाहिए बेयर मिनिमम 6%। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, there is a growing tendency towards attaining education in private institutions, though facilities are better but is very expensive. Low access in rural areas, due to high degree of disparity in reaching out facilities of education, the access level to education is very low for the people in rural areas as compared to people in urban areas. बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, यस। हमने जैसे डेटा के पीछे बात करी उसके अकॉर्डिंग हम दिख रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नमेंट should provide free and compulsory education up to age of 14 years within 10 years from the commencement of constitution, वो अभी भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। कोशिश हो रही है लेकिन क्वालिटी नहीं मेंटेन हो रही। जेंडर इक्विटी विच इज बेटर देन बिफोर, कि हमने कोशिश करी कि हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को लाए। सोशल स्टेटस ऑफ विमेन की बात करें तो थोड़े से परसेंटेजेस बेटर हैं लेकिन रिमार्केबल नहीं है। हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर्स, अगर हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें कि 15 ईयर्स की से ज्यादा कौन से लोग जो है वो एवरेज बेसिस पे स्कूल जा रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं, तो इसका परसेंटेज बहुत लो है और जिसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत ज्यादा है। These are the guidelines to NCERT questions. You can pause the video and read these. Answers to all these questions are available in the video. Thank you and have a nice day.